हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप ऑल वेल। दोस्तों, डिटेल स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताना चाहूँगा। माई सेल्फ संदीप कुमार, आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन in June 2022 in my third attempt. In my first two attempts, I was unable to qualify this examination with a little margin due to some factors. But yes, in my third attempt, I made this with a better score of 99.098 percentile. Friends, now बात कर लेते हैं कि what is UGC NET and JRF. NET means National Eligibility Test, JRF Junior Research Fellowship. अब पॉइंट आता है कि what we will get after qualifying this examination. After qualifying of this examination, you will able to become an assistant professor in all over India, and after getting JRF, then you will get a research fellowship from government about 40,000 per month. ये एक स्टाइफंड के रूप में आपको दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट इफ यू विल एनरोल फॉर द PhD कोर्स for the duration of 3 years. Now points comes who is eligible to apply for this examination. दोस्तों, आपको मास्टर में फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी मिनिमम 55% मार्क्स नेसेसरी है, एंड फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी दिस इज 50%. तो आप UGC नेट और JRF के लिए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. नाउ पॉइंट्स कम्स द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया. क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिफरेंट टीचर्स का ऑन डिफरेंट यूट्यूब चैनल डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट आपको दिस रीज़न को आपको क्लैरिफाई करने के लिए you should go through the official website of UGC. उसके ऊपर क्या दिया हुआ है? I want to explain this within an example. For an example, किसी भी एक सब्जेक्ट में like in commerce 50,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अप्लाई किया और उनमें से only 40,000 स्टूडेंट्स ही अपीयर्ड हो पाए in both the subjects, paper 1 and paper 2, in both the papers, paper 1 and paper 2. And out of 40,000, how many students are in the slot of first cap? First cap बोले तो UGC ने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि मिनिमम 40% मार्क्स in both the subject, both the papers, paper 1 and paper 2 में आपको combinedly लेके आना होगा. लाइक पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो इन टोटल 150 क्वेश्चन. सो 150 क्वेश्चन का 40% 60 क्वेश्चन, तो कंबाइनली आपको 60 क्वेश्चन मिनिमम ठीक करने होंगे. It doesn't matter that all are from paper 2 or in both are paper 1 and paper 2. Like आपने पेपर 1 में आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सही कर दिया, तो पेपर 2 में मिनिमम आपको 20 क्वेश्चन सही करना होगा. यहाँ पे भी काफ़ी टीचर्स बोलते हैं कि आपको सेपरेट पेपर 1 में सेपरेट 40% लेके आना होगा एंड पेपर 2 में सेपरेट 40%, but it's not like this, it's in combine. Like out of 40,000 only 35,000 स्टूडेंट्स ने ही ये क्राइटेरिया फुलफिल किया. सो क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स होंगे 35,000 स्टूडेंट्स का 6%. ओनली टॉपर 6% विल बी क्वालिफाई फॉर द
UGC NET, and topper 1% will qualify for JRF. So this is the criteria of qualifying the UGC NET and JRF. Now points comes the difficulty level. तो डिफ़िकल्ट तो है क्योंकि टॉपर 6% में आना नॉट so easy, but yes, being a defense personnel, if I can clear this examination, then definitely anyone from you can clear this examination. अब बात आती है how. Only the points need to focus, the hard work, dedication, and the last and most important is patience. Because if someone is unable to qualify this examination in the very first attempt, तो students क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं. Because only 6% will qualify. तो आपको एनालाइज करना है, आपको रियलाइज करना है कि in which field, in which subject, in which chapter you are lacking behind, you missed your preparation, and why you didn't clear this examination. You analyze करना आपको, and after that उन particular weak points पे you should focus and you can qualify this examination. अब बात आती है पेपर का पैटर्न क्या होता है. दोस्तों ये पेपर एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है हाफ ईयरली जून एंड दिसंबर में. पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं. ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. पेपर ऑनलाइन मोड में करवाया जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है. इसके बाद टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है. इसमें you have a choice that you can directly go with paper 1 and or you can start your exam with paper 2. It's depend up to you. इसके बारे में भी अभी आगे बात करने वाले हैं. अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि टाइम कंज्यूमिंग स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर द लेटेस्ट pattern of this NTA, most important thing is time management. Because paper level, difficulty level due to the time consuming pattern थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. If you are able to manage your time efficiently, properly, then you can clear this examination in your very first attempt. जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा जो सेकंड अटैम्प्ट था, तैयारी बहुत अच्छी थी, बट ड्यू टू पुअर टाइम मैनेजमेंट मैंने PYQs और MCQs की प्रैक्टिस की, बट इन प्रैक्टिस टाइम एक प्रॉपर टाइप का टेस्ट नहीं दिया विद प्रॉपर टाइम. ड्यू टू दैट आई अटेम्प्टेड ओनली 130 क्वेश्चन आउट ऑफ 150. इवन आफ्टर दैट कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ड्यू टू पुअर टाइम मैनेजमेंट. इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने प्रैक्टिस टाइम में एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ में PYQs लगाइए प्रॉपर टाइम के साथ, और एट द डे ऑफ द एग्जामिनेशन आपको चूज करना है कि आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है, पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है. जो भी पेपर आपका स्ट्रॉन्ग है उसको पहले कीजिए. लाइक इन माई थर्ड अटैम्प्ट आई स्टार्टेड माई एग्जाम विद पेपर 2 एंड यस, विद इन 2 आवर्स आई कंप्लीटेड माई पेपर 2 और मेरे पास मोर देन 60 मिनट्स बच गया था पेपर 1 के लिए, जो कि सफिशिएंट है. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. DI होता क्या है, यदि आप स्टार्ट करें पेपर 1 से और आपका पेपर 1 और पेपर 2 इक्वल है, या तो पेपर 1 थोड़ा सा वीक है इन कंपैरिजन टू पेपर 2, तो होगा क्या,
sometimes you will face DI in your first क्वेश्चन। वहाँ पे बच्चे पैनिक में चले जाते हैं क्योंकि DI बहुत ही सिंपल आता है इस एग्ज़ाम में, बट वो लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उस टाइम आपको नो नीड टू बिकम पैनिक। आपको ज़्यादा लग रहा है कि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, you just skip that question, that particular part, and go to the next, because if you will attempted the entire question paper, you will get extra time, because you skip the question, more time consuming। अगेन उसको मार्क कर लीजिए स्टार्टिंग में और अगेन उसको अटैम्प्ट कीजिए, देन डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी जो मास्टर की बुक्स हैं उनसे गो थ्रू हो जाना है। उसके बाद एक्स्ट्रा आपको मार्केट से कोई एक बुक ले लीजिए, लाइक अरिहंत पब्लिकेशन जो मैंने लिया था, उसमें से आपको एक एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा। लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक पे स्टिक नहीं होना है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एंटायर 10 ईयर्स इन अ सिंगल बुक से आपको जस्ट पैटर्न पता चल जाएगा, उससे आपको फोकस करना है आपकी प्रिपरेशन पे। और दूसरी बुक PYQs प्रैक्टिस के लिए आपको आर गुप्ता पब्लिकेशन, बहुत ही अच्छी बुक्स है, लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंड अनदर बुक है PYQs की नवदीप कौर पब्लिकेशन की, जिसमें बहुत ही अच्छे ढंग से आपको PYQs यूनिट वाइज दिए हुए हैं। यूनिट वाइज PYQs की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जिस पर्टिकुलर यूनिट में आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, उनको आप सेपरेट हाईलाइटर से मार्क कर लीजिए, और जो क्वेश्चन बार बार आपसे रॉन्ग हो रहे हैं उनकी एक सेपरेट आपको एंट्री करनी होगी, आप किसी बुक में मार्क कर लीजिए, अदरवाइज आप किसी सेपरेट कलर के साथ उनको हाईलाइट कर लीजिए, और उनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, बुक पेपर 1 के लिए आपको KVS मदान सर की बुक है, KVS मदान पब्लिकेशन, जो कि बहुत ही एक अच्छी बुक है, उसकी आप प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। टेस्ट लगाने के लिए आपको, जैसा कि मैंने बुक्स बताया, इसके अलावा आप कोई ऐप लाइक टेक्स्ट बुक की एक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं 200-300 रुपीज़ में, जो कि मिल जाती है फॉर 1 ईयर, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने चैनल पे वीकली और मंथली टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। आपको जो ये बुक में, जो मैंने बुक बताई, उसमें जितने PYQs हैं, जो मटेरियल है, वो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको एंटायर प्रोवाइड करवा दूंगा इन अ सिस्टमेटिक मैनर विद इन अ यूनिट वाइज एंड एंटायरली कंबाइन द फुल पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको मैं टेस्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ये सभी प्रिपरेशन एक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आपको ध्यान देने योग्य बात सबसे पहले है, यूजनेट की ऑफिशियल साइट से आपको एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट लें, किस चीज़ का, लेटेस्ट सिलेबस का। आप अपनी प्रिपरेशन लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि करते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आपको अपना स्टडी टाइम मैनेज करने की बहुत ही ज़रूरत है। आप ओनली स्टूडेंट हैं और ओनली इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, देन देर इज़ नो इशू, यू कैन मैनेज योर टाइम। बट इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर एन एम्प्लॉई, देन डेफिनेटली you need to focus on your management of your time। मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको एक प्रॉपर टाइप का टाइम टेबल बनाना होगा, जिसमें कि कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट एटलीस्ट वीक में 2 बार पक्का आपको रिवाइज हो जाने चाहिए, आप उसका टर्न आ जाना चाहिए। एंड स्पेशली फॉर द प्रैक्टिकल कंसर्न, जो यूनिट में फॉर्मूलाज रिलेटेड है, तो उस यूनिट का आपको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि यदि टाइम गैप
ज़्यादा हो जाता है तो एक टाइम के बाद हम उसको भूलना शुरू कर देते हैं। तो आपको उसको जस्ट एक चार्ट बनाएं, अपने स्टडी टेबल के पास में वॉल पे चिपकाएं और एटलीस्ट डे में एक बार जरूर उसको गो थ्रू करें। वो आपके मेमोरी में ऐसे बैठ जाएगा, आप एग्ज़ाम वाले दिन विदाउट वेस्टिंग टाइम आप अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देन जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, जैसा कि मैंने बार बार बताया कि आप उनकी प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करना होगा। ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन फॉर टाइम मैनेजमेंट, ट्राई टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना, सोशल मीडिया पे हम अपना टाइम काफ़ी वेस्ट कर देते हैं, लाइक फेसबुक। अननेसेसरी, नहीं चाहते हुए भी आप 2 मिनट के लिए आप फेसबुक खोलना बैठेंगे, लेकिन उसमें आप एटलीस्ट 20 मिनट्स, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका टाइम गुजर गया। सो ड्यूरिंग दिस एग्जाम प्रिपरेशन इट वुड बी बेटर इफ यू कैन टोटली cut off from the social media. If not, then please minimize your time to spend on social media. At last, for motivation, सभी की लाइफ में फेलियर आते हैं, तो फेलियर से आपको गिव अप नहीं करना। जीतता वही है जो फेलियर के साथ डटकर एक बुलंद हौसले के साथ, हार्ड वर्क के साथ, मोटिवेशन के साथ और अपने लाइफ में डिसिप्लिन के साथ एंड लास्ट पेशेंस के साथ जो तैयारी करता है, वही लास्ट में विनर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई थिंक you enjoyed this session, and if you will follow this strategy, then definitely you will be qualified for this examination and you will become an assistant professor with a better score. Thank you very much.